Hi all, welcome to Examshala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 20th of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main content. So first article is very important, that is about the outsourcing of politics, written by Ms. Richa Gupta ji. So it is basically discussing the concept of IPAC. Recently आपने पीके का नाम सुना होगा, पीके विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ मूवी, इट इज़ मिस्टर प्रशांत किशोर. सो जो पॉलिटिकल एडवाइज़र का काम करते हैं अलग अलग इलेक्शन पार्टीज़ में, अलग अलग कैंपेन्स में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कैंपेन मैनेजमेंट, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ और शी इज़ क्रिटिसाइजिंग द रोल ऑफ सच अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल मैनेजमेंट इन द कमिंग फ्यूचर, स्पेशली इन द इलेक्शंस. So how Mr. PK, which has been 98% successful. So if you see the track record starting from the 2014 BJP victory, he was the political advisor and the election campaign advisor of Mr. Narendra Modi ji and the BJP. Then he shifted to RJD JDU alliance in the 2015 elections, where he also won. Then he shifted to Punjab election, where Captain Amrinder Singh won. Then he shifted to the Karnataka elections, where Congress won. Then again he shifted to the recently Bengal elections and Mamta Didi won. Again he shifted to the Tamil Nadu, where the DMK party won. Bearing one example, सिर्फ एक और एक एग्जाम्पल, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस पार्टी की हार होती है उसको छोड़ दे तो 98% ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन द मैनेजिंग कैंपेन. बट एट द सेम पॉइंट द ऑथर इज़ क्रिएटिंग अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि इलेक्शन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी और जनता के बीच के विश्वास और उनके महत्व के मुद्दे पर होता है. इसमें इस तरह की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैंपेन्स है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, स्पेशली आईपैक, उनकी जो कंपनी का नाम है, और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, वट एवर यू कॉल द कैंपेन मैनेजमेंट और एड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ बिन आईपैक. इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भारतीय लोकतंत्र में कितनी ज़्यादा सरल और सुगम है. सो आर दे रेलिवेंट एंड व्हाट इज देयर रोल? Are they demoralizing the basic concept of democracy? Are they materializing the concept of democracy, where democracy is directly meaning to connect with the people and the voices of people to their leaders and their demands? But what is now happening, the elections जो आजकल के चुनाव हैं, they are becoming a game of win and lose. Political parties in their way of winning and losing election can go to any extent, and that is why the very idea of the political parties and the leaders going to the grassroots level, listening to the people, their problems, and then representing and getting the advice and getting the blessings of the people, जनता के लोग जो जनादेश लेकर आते थे, वो जनादेश के बीच में कहीं ना कहीं there has been a sharing, and the leaders then उनके बीच में आ रही हैं एक political management और ad management campaign bodies, and then the local people, and that is why a shield has been created, which is very very difficult and which is demeaning the very concept of democracy and the democratic and the electoral politics in India, where the people of India actually choose the government, and the very concept of democracy is for the people, of the people, and by the people. But what is actually happening, it the people are the election management campaign is run by the political campaigns, and these campaign management bodies are actually cutting the links between the leaders, political leaders, and the people by managing the social media campaigns. Nowadays the elections are also run on the social media platform, and where it has just become a PR, that is public relation management organization. किसी व्यक्ति की इमेज कितनी अच्छी है, किसी व्यक्ति का स्टार कल्चर, द ऑरा, हाउ फेमस ही और शी इज़, बेस्ड ऑन दैट द इलेक्शंस आर बीन हैपनिंग. A negative or a positive advertisement, all of the advertisement, all of the election is been run on the image of the person and the perception around it, not actually around the need of the people, कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों के लिए उसने कितना काम किया है और या कितना काम कर सकता है. इसके बजाय द इलेक्शन इज़ बिन हैपनिंग only and only on the demands, on the star culture, on the aura of the people, and that is why it is hampering the very structure of the electoral politics, where the people allow and the people choose their leaders to actually work for them. What is happening now, people are choosing stars, who is more famous star, and that is why who is more advertisement, जिसका advertisement बढ़िया हो रहा है, जिसकी advertising बढ़िया हो रही है, he is winning. And that is why a representative democracy, which requires a strong party system, which needs a cadre based system, which needs a volunteers and karyakartas to go all the roots level to the people, listen to their demands, listen to their needs. वहाँ पर गली गली जनादेश लेने के लिए आपको आम व्यक्ति, आम जनमानस से जुड़ना होता है. वहाँ पर उनकी आलोचनाएं सुननी होती है, उनकी बात सुननी होती है, तारीफ सुननी होती है, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कनेक्ट
between the people and the leaders. But due to the invasion of these kind of political management campaigns party which manage the political campaigns, now elections are becoming more and more like an ad campaigns. So it is a campaign war, it is a social media war, whereas election should be to take the blessings and take the order from the people. Now it is happening that it is only limited to a social media war and the war of नैरेटिव, नाराओं और अलग अलग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के बीच की लड़ाई हो गई है, रादर दैन गेटिंग ट्रस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द पीपल. Similarly, he is criticizing the IPAC model where Mr. PK, the Prashant Kishore ji, has been seen to advise the leaders of the party कि किस व्यक्ति को कहाँ से टिकट देना है, किस सीट पर लड़ाना है, उस सीट पर लड़ने के मुद्दे आपके क्या होने चाहिए. So it is all becoming a materialized, just like the US election system campaign management bodies. So they manage the campaigns and in which we are moving towards a presidential form of government कि हम एक लीडर को फोकस करके पूरी पार्टी को बना रहे हैं. Initially the Indian system was to elect MLAs or MPs, and these MLAs and MPs will select the leaders which will become PM or CM in the respective journey. But what is happening now, we are projecting the leaders. So leader is becoming greater than the party, and this is the campaigning, and this is the maligning the very stage of the electoral politics in India, and that is very very harmful, and it will create a star culture and will make more and more autocratic leaders and will connect or will disconnect the leader from their party as well as from the local voters also. The campaign template is started of a presidential template. It is going towards more and more a presidential level. The input of these feedbacks, especially what is happening, the leaders of this party, अलग अलग parties के leaders जो अपने कार्यकर्ताओं की बात जिन्हें सुननी चाहिए, they should be hearing about the local and management levels. They are hearing from those people who have done MBAs from different universities and those belong from different areas. So instead of listening to the volunteers and the karyakartas of the local level, what is happening, they are getting advice from the so-called MBA from the other Harvard universities and Cambridge universities, and similarly people from outside the states are advising what should be done to win the elections. So the elections are becoming more and more a win and lose game rather to connect to the people and get the trust of the people. And that is why it is happening in three basic ways and in three different ways. And first is it is bypassing the internal feedback mechanism. How? So जो पार्टी का इंटरनल फीडबैक होता है, इंटरनल कार्यकर्ता होते हैं, दिस कार्यकर्ता इज नॉट गोइंग टू, इनकी बातें को सुना नहीं जा रहा है. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर पीके और उनकी जो आईपैक नामक संस्था है वो लीडर्स और कार्यकर्ताओं के बीच में एक बैरियर का काम करती है, जो लॉन्ग रन में क्या करता है कि लीडर को अपने कार्यकर्ताओं से दूर कर देता है और आगे चलकर ये पार्टी जो है वो एक ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ पार्टी बन जाती है. सेकंड इज इट बाईपासेस द इंटरनल मैकेनिज्म्स एंड इंटर पार्टी कॉम्पिटिशंस because it is only fighting on the PR management, advertisement management. So based on narrative the party is fighting, not on the work done, not on the trust, not on the efficiency, but only and only on the social media platform and kind of advertisement that they are having. Third is it neutralizes the ideological component. वो पार्टी जो किसी एक विचारधारा से जुड़ी है, किसी एक विचारधारा को प्रमोट करने के लिए इलेक्शन में आई है, किसी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करती हैं, इस आईपैक नामक संस्था से इस तरह के पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने की वजह से दे लीव देयर आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, अपनी विचारधारा को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने और हारने के पीछे लगे होते हैं. एंड इन कोर्स ऑफ विनिंग एंड लूजिंग द इलेक्शंस दे इन मैनी टाइम्स compromises with their ideology, and that is actually causing a greater demarcation in the Indian democracy. Because अगर किसी पार्टी की खास विचारधारा ही नहीं होगी तो दो पार्टी के बीच में डिफरेंस क्या होंगे. और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग MPs या MLAs हों, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच कर रहे हैं, दल बदल की जो प्रॉब्लम हो रही है. वाई? बिकॉज ऑफ द नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टी लाइन, एंड दिस काइंड ऑफ political campaign management, election management organizations are actually ruining the electoral structure and electoral relation between the voters and the leaders, and especially the volunteers and the leaders of the party, and they are making more and more stars, superstars, rather than a good leaders, a good complementary and comprehensive leaders. They are making a star culture which is nothing but the promotion of
autocracy, because if a person knows that the party has won based on only his or her name, she or he will be an autocratic leader. He will not listen to the feedbacks by the other people, other volunteers, other karkarta, and that is actually going to malign the structure of democracy in India. This is what the author is saying. Secondly, we will move toward the council. Recently, बंगाल की सरकार ने विधान परिषद काउंसिल्स की डिमांड की है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काउंसिल्स क्या होती हैं. जिस तरह से केंद्र में पार्लियामेंट की 3 स्ट्रक्चर होती हैं. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. सिमिलरली स्टेट में जो राज्य की पार्लियामेंट होती है, राज्य में 3 तरह की बॉडी होती है. इस विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर. विधानसभा इज सिमिलर टू लोकसभा एंड विधान परिषद इज जस्ट काइंड ऑफ नेम से एक सिमिलर है, पावर्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है. एंड गवर्नर इज जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट. तो राज्यों में 2 तरह की लेजिस्लेचर का 2 पार्ट होता है. वन इज़ विधान परिषद एंड अनदर इज़ विधानसभा. विधानसभा में जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं. वहीं विधान परिषद के मेंबर जो होते हैं उनमें 1/12 यानी कि उसमें जितनी भी सीट एलोकेट की जाएगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन द विधानसभा, विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल से इंग्लिश में कहते हैं, उसमें जितनी भी सीट एलोकेट की जाएंगी उन सीट का 1/12 भाग केवल और केवल ग्रेजुएट्स द्वारा वोट करके चुना जाएगा. दूसरा 1/12 भाग केवल और केवल टीचर्स द्वारा वोटिंग के आधार पर चुना जाएगा. 1/3 भाग वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल बॉडी के द्वारा चुना जाएगा. दूसरा 1/3 भाग असेंबली के जो यानी कि विधानसभा के जो लोग हैं सदस्य हैं उनको चुनेंगे. और बाकी के बचे लोगों को गवर्नर जो है वो कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, इन सब के क्षेत्र में जो वो प्रमुख लोग होंगे उनको मनोनीत किया जाता है. जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स पीपल इन द राज्यसभा. So based on that the peoples are get elected. Now what is the history? So currently अगर देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक वाले की जो आंध्र था उसमें ही दोनों थे. तो जब अलग हुए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ही अलग हुए. तो इन्हीं जगहों पर पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया है तो उसकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अभी तो नहीं है, तो वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं. तो अभी इन राज्यों में ही विधान परिषद है, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. बंगाल ने इसके लिए डिमांड किया है. इसका इतिहास देखें तो भारत में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था 2 हाउसेस की सिस्टम आई थी 1919 मॉन्टेग्यू, क्लेम्सफोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के तहत. लेकिन वहाँ पर जो बाई कैमरल यानी कि 2 सदनों की व्यवस्था वो केवल और केवल सेंट्रल लेवल पर आई थी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए. आगे चलकर 1935 में जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट द्वारा लागू की जाती है कि राज्यों में भी यानी प्रोविंसेस में भी, उस वक्त जो ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, बिहार हो, सेंट्रल प्रोविंस हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रोविंस हो, तेलंगाना एंड मैसूर प्रोविंस, इस तरह के प्रोविंसेस में भी क्या किया गया कि 2 सदनों की व्यवस्था की गई जिसका नाम दिया गया विधानसभा एंड विधान परिषद. एंड दैट इज़ वाई उनकी हिस्ट्री यहाँ से आती है फॉर इंडियन प्रोविंसेस. आगे की बात देखें तो बंगाल में भी 1937 में सबसे पहली बार 1935 को एक्ट को लेकर 2 सदनों की व्यवस्था होती है जो 1969 तक चलती है. फिर वहाँ की कांग्रेस और लेफ्ट की एक कोalition की सरकार बनती है जो उसे स्थगित कर देती है और तब से 1969 से वहाँ पर एक ही सदन है, दैट इज़ द विधानसभा, विधान परिषद नहीं है. ठीक है. और अभी हाल ही में अब विधानसभा बनाने की जो स्थितियाँ हैं, विधानसभा बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आर्टिकल संविधान 168 के तहत विधानसभा बनाने के लिए, विधान परिषद बनाने के लिए किसी राज्य की विधानसभा में यानी कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन को पास करना होता है. इट इज़ नियर अबाउट 70% ऑफ द मेजॉरिटी. वो बहुमत फिर कहाँ जाएगा, दैट बहुमत गोज़ टू द पार्लियामेंट. वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से भी सिंपल मेजॉरिटी से यानी कि 50% + 1 वोट से वो रेजोल्यूशन जब पास होगा तब जाकर उस राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण हो सकता है, काउंसिल को आज्ञा मिल सकती है. एंड दैट इज़ वाई कि विधान परिषद बनाना केवल और केवल राज्यों के हाथ में नहीं है, इट इज़ इन द कंबाइंड हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड अगर उसको दूसरी तरीके से कहें तो वो अपर बॉडी यानी कि उस विधान परिषद बनाने में ज़्यादा पावर है सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकारों के पास, वो भी पार्लियामेंट के पास. और इसी तरह से 2 बिल, एक असम असेंबली द्वारा और एक राजस्थान असेंबली द्वारा
पार्लियामेंट में पेंडिंग है विधान परिषद बनाने के लिए। अब देखते हैं कि अगर इस तरह से है तो हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है। तो विधान परिषद की अपनी कुछ विशेष शक्तियां नहीं हैं। उसका बनाने का एक मुख्य मकसद यही था जो राज्यसभा का था कि कोई पार्टी अगर विधानसभा में बहुमत के साथ आ जाए या जल्दबाजी में कुछ इस तरह का बिल पास करना चाहे जो अलोकतांत्रिक हो या मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करती हो, तो उस पर एक चेक एंड बैलेंस, क्योंकि विधान परिषद के लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड कम होते हैं और पढ़े लिखे लोगों को उसमें नियुक्ति करने की बात पहले कही गई थी, तो उस पर एक ज़्यादा अच्छी स्क्रूटनी मिल सकती है किसी बिल पे, किसी पॉलिसी पे, और ये उसका बेसिक आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट था। लेकिन आगे चलकर यही कॉन्सेप्ट जो है वो मलाइन हो गया, क्योंकि ये देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अलग अलग सदस्यों को राज्यसभा में या राज्य की राजनीति में, एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर बनाने के लिए बैकडोर एंट्री कराने लग गई विधान परिषद। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो 1/3 सीट है वो लोकल अथॉरिटी यानी कि लोकल बॉडी, फिर 1/3 सीट वहाँ की असेंबली और गवर्नर, यानी कि ये 3 तरह की सीट जो आप देखेंगे तो 1/6, 1/3 और 1/3 इतनी सीटें केवल और केवल जो रूलिंग पार्टी है उसके हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने समर्थकों को इस तरह से बैकडोर से विधान परिषद में एंट्री दिलवा देते हैं और फिर वो दे आर बिकमिंग एलिजिबल फॉर गेटिंग द मिनिस्टरशिप। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राज्य में मिनिस्टर बनने के लिए आपको उन राज्यों की लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है 6 महीने के अंदर, यानी मंत्री बनाए जाने के 6 महीने के भीतर आपको उसका सदस्य बनना अनिवार्य है। और अभी जो बंगाल की बात कह रहे हैं तो ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, तो ममता बनर्जी जो है उनको सीएम की शपथ तो दिलाई गई, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता चाहिए होगी, या तो विधानसभा की या तो विधान परिषद की, और इसीलिए सारा गेम हो रहा है ताकि बैकडोर एंट्री कराई जा सके। दूसरा इसमें ये होता है कि क्योंकि इसकी शक्तियाँ अधिक तो होती नहीं, तो अधिक शक्तियाँ न होने के बावजूद लेकिन उसमें आप मेंबर्स रखेंगे। अब मेंबर्स रखेंगे तो उनके पे पीए, ऑफिशियल गाड़ी, घर, बंगला, सेक्रेटरीट सब कुछ देना होगा, बिजली बिल का खर्चा होगा और भी बहुत सारे मैनेजमेंट में खर्चे होते हैं। वो सारा का सारा खर्चा जो है वो राज्यों के एक्सचेकर पर पड़ता है, और क्योंकि उसका काम कुछ विशेष नहीं होता है तो ये मोर एंड मोर पॉलिटिकल कन्फर्मेशन के लिए पार्ट करती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग अ इकोनॉमिक डिफरेंस एंड इकोनॉमिक डेफिसिट इन द स्टेट्स। और इसीलिए बहुत से राज्यों में ये सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन जिन राज्यों में पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को किसी न किसी तरह से बैकडोर एंट्री कराने के लिए इस तरह की जो है विधान परिषद की डिमांड की जा रही है। अब देखते हैं कि उसकी शक्तियाँ विशेष क्या क्या हैं। तो विधान परिषद की कुछ भी खास विशेष शक्तियाँ नहीं हैं। जैसे कि अगर विधानसभा ने कोई मनी बिल पास कर दिया तो विधान परिषद को उसको 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ेगा, नहीं भी करेगी तो उसे पास करते हुआ मान लिया जाएगा। सिमिलरली अगर विधानसभा कोई नॉर्मल बिल पास करती है और विधान परिषद उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ उसे वापस करती है, तो विधानसभा जो है उस अमेंडमेंट को मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं, यानी वो चाहे तो उस अमेंडमेंट को नहीं भी मान सकती है। एंड दैट इज़ वाई बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म व्हाट इज़ हैपनिंग कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच इट हैड इन द प्रीवियस मैटर। सिमिलरली इस विधान परिषद की कोई खास जॉइंट सेटिंग भी नहीं हो सकती। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सेटिंग होती है उस तरह से विधान परिषद की या विधानसभा की जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती, तो इसमें इसकी भी शक्तियाँ बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। तो इस तरह से विधान परिषद जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, केवल इसे इसलिए रखा गया था ताकि वो जल्दबाजी में पास किए गए बिल को एक स्क्रूटिनी दे सके, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, और ये इसके विधान परिषद की लिमिटेशंस है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और फर्दर डिटेल के लिए वीडियोस को देखते रहिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।